خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کے سامنے کرسمس کے حوالے سے ایک اور مضمون سرمن لے کر میں حاضر ہوں، اور آج کے جو تعلیمی سیشن ہے یا منادی ہے، اس کو آپ سرمن کہہ سکتے ہیں، پیغام کہہ سکتے ہیں، خوشخبری کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جو مضمون ہے وہ سلامتی کا شہزادہ، حقیقی سلامتی کا شہزادہ یعنی یسوع المسیح۔ کرسمس کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کیونکہ مجھے کچھ ایک دو میرے دوستوں نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی کرسمس کے حوالے سے کوئی پیغام ایسا شیئر کریں، کیونکہ موسم جو ہے وہ سیزن کرسمس کا چل رہا ہے، تو وہ کچھ جگہوں پہ کلام کی بات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بلکہ اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اسی طرح اکنالج کریں، ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں اور کلام کے مطابق لوگوں کو تیار کریں آنے والے وقت کے لیے۔ تو آج کا جو پیغام ہے وہ سلامتی کا شہزادہ یسوع المسیح، کیونکہ بہت سے لوگ کرسمس کے فیسٹیولز کر رہے ہیں، کرسمس کے تہوار کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس کوئی فیسٹیول یا تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ نجات کا پیغام ہے، یہ سلامتی کا پیغام ہے، یہ صلح کا پیغام ہے، یہ حقیقی امن کا پیغام ہے۔ اگر کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی طبقہ یا کوئی لوگ، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سلامتی کے دائی ہیں یا سلامتی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میں یہاں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف مسیح یسوع میں سلامتی ہے اور کہیں سلامتی نہیں۔ اس کا آپ ثبوت لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پہلے باب میں، لوکا میں، جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کیا لفظ کہے، میں 27 آیت آپ کے سامنے خاص طور سے پڑھوں گا کہ لکھا ہے، جس کی منگنی، یہاں مقدسہ مریم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ آگے 28 آیت پر غور کیجئے گا، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ پر، یہ لفظ غور کیجئے، سلام تجھ پر، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، سلام تجھ کو۔ اور فرشتہ جو ہے وہ جبرائیل ہے، اور میں 26 آیت بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ 6 مہینے میں جب جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ تو جبرائیل ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی، یہودی تعلیم کے اندر بھی، اور مسیحیت کے اندر بھی، اور دیگر مذاہب کے اندر بھی، کہ جبرائیل فرشتہ خدا کا خاص پیغمبر ہے، وہ پیغام لانے والا ہے۔ وہ جب بھی آسمان سے نیچے اترا، بنی آدم کے پاس آیا، ہمیشہ پیغام لے کر آیا، اس نے خدا کا پیغام دیا۔ لیکن یہ انسانی تاریخ میں پہلا اور آخری موقع تھا جب اس نے آ کر سلام پیش کیا، سلامتی پیش کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یسوع مسیح سلامتی، اور ہمیں تاریخ میں کہیں ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ جس کو کہا گیا ہو کہ تجھ پر سلام یا سلام لے کر ہم آئے ہیں۔ اگر لوگ دعوے کرتے ہیں تو کرتے رہیں، حقیقی یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، اس کے پاس سلامتی ہے، وہی سلامتی کا دائی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سلامتی لے کر آیا۔ اور انسانی تاریخ کے اندر جبرائیل پہلی اور آخری مرتبہ پیغام کی بجائے سلامتی لے کر آیا۔ اور پھر ہم اسی میں آگے دیکھتے ہیں، یہ ابھی میں اس کلام کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں ابھی آپ کو کچھ باتیں بنیاد کے طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یسوع مسیح واقعی ہی سلامتی کا شہزادہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لوکا 2 باب اور اس کی 13 آیت کے اندر لکھا ہے، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ، یہاں پھر جبرائیل ہی کا ذکر ہے، یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ، اب سارے آسمانی لشکر خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر
उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। यहां फिर राजी और सुलह होने की बात है, यहां फिर सलामती की बात है। इसलिए अगर कोई ये दावा करता है कि वो सलामती के या सलाम के या अमन के दाई हैं, हरगिज नहीं। यीशु मसीह वाहिद इस कायनात की हस्ती है जिसके अंदर सलामती है, जिसके वसीले से सलामती है, जिसमें हम सलामती पाते हैं। उसने कभी किसी किस्म के जंगो जदल, किसी किस्म की लड़ाई और किसी किस्म की तफरकाबाजी की बात नहीं की। उसने हमेशा सलामती की बात की। उसने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। उसके दावे बड़े बड़े हैं। उसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, वही सच्चाई है। अब हम सलामती के शहजादे को जरा तारीखी एतबार से देखते हैं। तो आज का जो हवाला मैंने चुना था वो इब्रानियों के खत में से था, उसके 7वें बाब की पहली 3 आयात में मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इब्रानियों 7 बाब और उसकी पहली 3 आयात। यहां पर लिखा है, और ये मलके सिदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो उसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए। इसी को अब्राहम ने सब चीजों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मैने की मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह है। यह बेबाप बेमाप बेनस्ब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू है न जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। बस गौर करो, आगे चौथी आयत भी है, बस गौर करो। यह कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग अब्राहम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दायकी दी। अब यह सलामती का जो शहजादा है, आज हम इसका जन्मदिन मना रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वाकई 25 दिसंबर ही उसका जन्मदिन था हकीकी तौर पे या नहीं। बहुत से इख्तलाफात हैं, जो भी दिन है। मैं ये समझता हूं कि जिस दिन जिस शख्स जिस इंसान की जिंदगी में ये सुलह का शहजादा, अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा आ जाता है, वो दिन उस जिंदगी के लिए मसीह की पैदाइश का दिन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सालम, जिसका तर्जुमा या मतलब यरूशलेम है, उसका बादशाह मलके सिदक जो है यहां पर, और अगर हम बाइबल के 2 और हवालों में इसका जिक्र है उनको भी देखें तो ये हमें एक पुरस्कार शख्सियत नजर आता है, क्योंकि ना तो इसका कोई शुरू है ना कोई आखिर है। ये अचानक से नमूदार होता है और अचानक से गायब हो जाता है। ये अचानक से नजर आता है पैदाइश के अंदर, जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को और उसके साथ के लोगों को एक ट्रेजेडी में से वो आजाद करके छुड़ा के ला रहा था। और फिर हम देखते हैं कि सिर्फ उसका जो जिक्र है वो 3 आयात के अंदर आता है पैदाइश के, और उसके बाद वो फौरन से गायब हो जाता है। उसके बाद फिर हमें उसका हवाला सिर्फ 2 और जगहों पर मिलता है, जबूर में और फिर इब्रानियों के अंदर। ये शख्सियत क्या है, और इसका इब्रानियों में खुदा का खादम, खुदा का बंदा हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताता है कि ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के मुशाबे है, ये उसका अक्स है। इसके नाम का मतलब सदाकत का बादशाह है। वो अब्राहम से खराजे अकीदत लेने के लिए नामालूम जगह से अचानक से नमूदार होता है और खुदा के खादम के लिए तजदीद बरकत का वसीला बनता है। जो बरकत, जो वादा खुदा ने उसके साथ किया हुआ है, उसके दोबारा उसकी तजदीद के लिए, उस पर मोहर करने के लिए वो दोबारा जाहिर होता है, फिर से जाहिर होता है। खुदा ने इंसान को अदन के अंदर सलामती के साथ पैदा किया और उसने उसे बरकत दी कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और माकूम करो। और यीशु मसीह दोबारा इस अहद की तजदीद के लिए कहता है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। फिर हम देखते हैं कि चूंकि जब वो अब्राहम के सामने हाजिर आता है, उसके सामने तजदीद अहद के लिए आता है, अब्राहम उसको दायकी देता है, वो फिर गायब हो जाता है। उसके आबाओ अजदाद, उसके पैदाइश, उसके दौरे हुकूमत या उसकी मौत के ताल्लुक से हमें कुछ भी इल्म नहीं, सिवाय इस बात के कि वो खुदा ताला का काहिन था। बस इससे ज्यादा नहीं हमें मिलता कि वो खुदा का काहिन था। कहानत
का मनसब उसके पास था, वो बैक वक्त बादशाह और काहिन था। मलके सिदक सालम का बादशाह जो खुदा ताला का काहिन था। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा ताकि हम और बरकत पाएं। पैदाइश 14 बाब और उसकी 18 आयत से मैं ये पढ़ूंगा इस सलामती के बादशाह के बारे में, वहां पर क्या हमें जिक्र मिलता है। पैदाइश 14 बाब और उसकी 18 आयत से लिखा है, और मलके सिदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। बस यहां तक हमें उसका जिक्र मिलता है। वो खुदा ताला का काहिन था, वो मर्दे खुदा था, लेकिन वो अब्राहम के नस्ब नामे से टोटल अलग था। वो अब्राहम की नस्ल से था ही नहीं। यीशु मसीह खुदा की जात का नक्श है, वो उसकी जात का परतव है। हम गलतियों उसके 4 बाब की 4 आयत में देखते हैं कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस जहान में भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। उसके बाप का, उसके नस्ब नामे का हमें यहां कोई जिक्र नहीं मिलता। ताहम एक बात मिलती है कि वो सलामती का बादशाह था, मलके सिदक सालम, और खुदा ताला का काहिन था। और फिर दिलचस्प बात कि हमें उसका जो हवाला है बाइबल की 2 और किताबों में मिलता है। जबूर 110 और उसकी 4 आयत में आपके सामने यह हवाला भी पढ़ना चाहूंगा ताकि हम आज के हवाले के ताल्लुक से, इस खिदमत के ताल्लुक से, आज के मौके के ताल्लुक से, क्रिसमस के हवाले से हम ये बात ज्यादा गहरे तौर पर जान सकें कि यीशु हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत रखता है और हमारे लिए वो क्या लेकर आता है। जबूर 110 और उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदावन ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू मलके सिदक के तौर पर अबद तक काहिन है। मलके सिदक के तौर पर अबद तक काहिन है। हम देखते हैं कि दाऊद ने बाद में यरूशलेम शहर को फतह किया और मलके सिदक के तख्त का वारिस ठहरा। मगर सदियां गुजरने और फरमारवाई खत्म होने के बाद वादा पूरा होने का मरकज एक आने वाले बादशाह के सूरत था जो खुदा का ममसू हो, जो बैक वक्त बादशाह हो और काहिन की खिदमत सर अंजाम दे। और यह वादा इब्रानियों के मुताबिक यीशु मसीह की जात में और यीशु मसीह के काम में पूरा होता है। उसने कहानत का काम किया। उसने काहिन तो भेड़ों और बकरियों और बछड़ों और फानी जानवरों का खून लेकर खुदा की हजूरी में पाक तरीन मुकाम में कफारा देने के लिए और कौम के गुनाहों के लिए हाजिर होते थे, जो खून कभी हरगिज गुनाहों को माफ नहीं कर सकता था। लेकिन यहां यीशु मसीह है जो अपना बेऐब खून लेकर खुदा के सामने हाजिर हो जाता है। अगर आप इब्रानियों का खत पढ़े तो जबरदस्त तालीम है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईमान की ऐसी गर्दान उसके अंदर हमें मिलती है कि हम हैरान हो जाते हैं। और यहां पर यीशु मसीह का सही अक्स जो है वो वाजे कर दिया जाता है। पुराने नामे और जमानों से उसके मुताबिक जितनी नबूवतें हुई उन सब नबूवतों को हम इस किताब के अंदर बड़ी खूबसूरती से पिरोया हुआ देखते हैं, जैसे एक खूबसूरत लड़ी में उसकी पूरी तारीख को पिरो दिया गया हो। और यह वादा इब्रानियों के मुताबिक हम यहां यीशु की जात में देखते हैं। इब्रानियों के खत के अंदर मलकीसिदक हमें यीशु की महज कदीम झलक दिखाता है, लेकिन यीशु मसीह में जब हम लूका में देखते हैं, मत्ती में देखते हैं, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो हमारे सामने हकीकी तौर पर यह सलामती का शहजादा जाहिर होता है, जिसके लिए आसमानी लश्कर भी मुनादी कर रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं और इश्तिहार दे रहे होते हैं बनी नो इंसान के लिए, बनी आदम के लिए, कि सलामती का शहजादा हमारे दरमियान है और उसके वसीला से आदमियों के दरमियान सलामती का पैगाम और सुलह का पैगाम है। मलकीसिदक जो है वो अपनी जात में बादशाही और कहानत को यकजा करके रखता है। पुराने अहद नामे में हमें ऐसी और कोई मिसाल मिलती नहीं कि कोई काहिन भी हो और बादशाह भी हो। अगर आप बाइबल को खंगालें एक
सिरे से आखिरी सिरे तक बार बार भी पढ़े, आपको ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती, क्योंकि कहानत और बादशाही दोनों कतई तौर पर अलग अलग चीजें थीं। और इस फर्क को समझने के लिए अगर आप दूसरे तवारीख के अंदर उसके 26 बाब के अंदर देखें तो उजिया जो कि बादशाह था, दूसरे बाब के 26 आयत के अंदर मैं आपको हवाला बता रहा हूं कि उसके 16 से 18 आयत के अंदर उजिया का जिक्र है, जो कि बेवक वक्त बादशाह था, लेकिन उसने जबरदस्ती बखूर जलाने की कोशिश की और बखूर जलाकर कहानत को भी अपने साथ जम करने की कोशिश की, एक नई तारीख रुकम करने की कोशिश की कि वो बेवक वक्त बादशाह भी हो और काहिन भी हो। लेकिन क्या हुआ, उसकी पेशानी पर कोर फूट निकला और उसका हाथ सूख गया और उसने फौरन से वहां से भागने की, बल्कि और काहिनों ने भी जल्दी से उसको बाहर निकाला हैकल के अंदर से, इसलिए कि उसने कोशिश की कि वो बैक वक्त काहिन भी रहे और बादशाह भी रहे। लेकिन ऐसा ये नहीं हो सका, क्योंकि ये दोनों बैक वक्त अलग अलग खिदमतें थी। काहिन जो थे वो बादशाह को बरकत देते थे, लेकिन यहां हम देखते हैं कि ये दोनों कतई तौर पर मुख्तलिफ बरकतें, कहानत भी और बादशाहत भी यीशु मसीह में मुकम्मल हो जाती है। वो इस बनी नो इंसान के लिए, बनी आदम के लिए, तमाम जमानों के इंसानों के लिए और इस कायनात का बादशाह है। कलाम में लिखा है सल्तनत उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, यानी कि इब्तदा और इंतहा, अब्दियत को बनाने वाला, अब्दियत का बाप और सलामती का, सुलह का शहजादा। सल्तनत उसके कंधे पर होगी, वो बेयक वक्त बादशाह और बेयक वक्त अब्दियत को बनाने वाला और सुलह और सलामती का शहजादा और बादशाह है। ये यीशु मसीह में। आप इस बात को मामूली मत समझें कि आप क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस इज ए बिगर थिंग। मैं इसको यह कहता हूं, क्रिसमस को मैं हमेशा दो हिस्सों में बयान करता हूं, क्राइस्ट एंड मास। आप इसके दोनों हिस्से चेंज कर लें, दोनों को फर्क डाल दें, क्रिसमस को अलग अलग करें। क्राइस्ट पहले आता है, बाद में MAS मास, हम कहते हैं क्रिसमस। ये क्या है? क्राइस्ट की मास है, मास यानी MAS, माई एनॉइटेड सेवियर, क्राइस्ट माई एनॉइटेड सेवियर। मैं इसको हमेशा से इस तरह कहता हूं कि क्राइस्ट माई एनॉइटेड सेवियर, मसीह मेरा मंसूर निजात दहिंदा, क्राइस्ट माई एनॉइटेड सेवियर। यीशु मसीह में यह कहानत और बादशाहत यकजा होती है। वो अपना खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया, वो सलामती का शहजादा हुआ, वो सलामती का बादशाह हुआ। और वो हाथ से, इब्रानियों के खत में क्या लिखा है? वो हाथ से बनाए हुए। मैं इब्रानियों के खत में एक और हवाला पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, 9वें बाब की 24 और 26 आयत के अंदर, 24 से 26 आयत के अंदर लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है। बस जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो इनके वसीला से पाक की जाए, मगर खुद आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में, डायरेक्ट खुदा की हजूरी में, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ, ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता था, वरना बिलाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ, और वो हमारी जिंदगियों में जाहिर हुआ है। हमारी जिंदगियों में कब जाहिर होगा? जब हम मुनाफिकत को, हिपोक्रेसी को निकाल देंगे, तब वो हमारी जिंदगियों में दाखिल होगा। मुनाफिकत, हिपोक्रेसी क्या है? अगर आप यिर्मयाह के अंदर पढ़ें तो यिर्मयाह के अंदर खुदा अपनी कौम के साथ दुख का इजहार करता है यिर्मयाह के वसीला से, और उसको कहता है कि इस कौम को बता, इसको कौम को तंबीह कर। और इसी तंबीह के वसीला से उन्होंने खुदा की नहीं सुनी और वो बाबली कौम के असीर हुए और गुलामी के अंदर चले गए। आज इंसान क्यों गुनाह की गुलामी के अंदर है? इसलिए कि इंसान ने अपने अंदर से मुनाफिकत को नहीं छोड़ा। हम चर्चेस के पुलपिट के अंदर जाते हुए ऊपर खड़े होते हैं और ये नहीं देखते कि हमारे अंदर कहानत की खिदमत है या नहीं, हम दूसरे पर उंगली उठा रहे होते हैं। शर्म करो। आज बहुत से लोगों से जो चर्च नहीं जाते, अगर आप उनसे पूछे आप चर्च क्यों नहीं जाते, तो लोग पता क्या कहते हैं? इसलिए कि चर्च के अंदर मसीही नहीं है, चर्च के अंदर हिपोक्रेट लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं।
आपको पता है हिपोक्रेट या हिपोक्रेसी क्या है? कदीम यूनानी लफ्ज हिपोक्राइट से यह लफ्ज निकला है जिसका मतलब बहरूपिया है, जिसको आजकल हम जोकर कहते हैं। यह लफ्ज क्यों कदीम यूनान में इस्तेमाल होता था हिपोक्रेट? क्योंकि वहां पर थिएटर्स का काम बहुत ज्यादा था, बहुत बड़े स्टेज ड्रामे हुआ करते थे, और वहां पर जो हिपोक्रेट जाता था वो अपना चेहरा ढांप कर जाता था, और बेक वक्त या तो वो कोई मजाहिया हंसाने वाला या बड़ा संजीदा काम करता था, और एकदम से पर्दे के पीछे जाकर दूसरा चेहरा ऊपर पहनकर आ जाता था, और बेक वक्त वो कभी मजाहिया और कभी संजीदा काम कर रहा होता था, लेकिन तो भी उसकी दोनों शख्सियत के बावजूद उस चेहरे के पीछे छुपा हुआ जो शख्स होता था लोग उसको ना जान सकते थे। आज कलीसियाओं के अंदर न सिर्फ कलीसियाई रहनुमा बल्कि कलीसियाओं के अंदर भी दो दो चेहरों के लोग हैं जो गुनाह की जिंदगी भी बसर कर रहे हैं और खुदा को भी खुश करना चाहते हैं, जो हफ्ते में एक दिन तो किसी और रास्ते पर चलते हैं, इतवार के दिन, चर्च के दिन, लेकिन दूसरे दिन वो बाकी 6 दिन वो किसी और रास्ते पर चल रहे होते हैं। ये हिपोक्रेसी है, इसीलिए ये सलामती का शहजादा हमारे अंदर पैदा नहीं होता। वरना यह भी बात है कि सलामती का शहजादा एक मसीही की जिंदगी में हो और उसकी जिंदगी ना तब्दील हो। हिपोक्रेसी यह नहीं कि जो गुनाह करते हैं या बुरे काम करते हैं, क्योंकि गुनहगार ने तो गुनाह करना ही है, और यही वजह है कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि वो खोए हुओं को ढूंढे। वो इसीलिए आया कि गुनहगार निजात पाए, गुनहगारों को निजात दे। हिपोक्रेट वो है जो गुनाह को छुपाता है। कलाम में लिखा है जो अपने गुनाह को छुपाएगा हर किस कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। गुनाह को छुपाने वाला हिपोक्रेट है, अपने हकीकी चेहरे को छुपाने वाला हिपोक्रेट है, और यही वजह है कि उनकी जिंदगी में यह सुलह का शहजादा जो है वो पैदा नहीं होता। यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता था, वरना बिनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटाए। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना जरूर है, उसी तरह मसीह भी एक बार लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान हुआ। मसीह भी एक बार लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान हुआ, और कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई दिया जो उसकी राह देखते हैं। एक वो वक्त था जब मसीह आज से 2000 वर्ष पेशतर पैदा हुआ, और एक आज ये वक्त है कि मसीह आपकी जिंदगी में पैदा हो। शायद इसीलिए हजारों साल से, साल से, सदियां दर सदियां कलीसिया मसीह का जन्मदिन इसीलिए मनाते आ रहे हैं कि लोगों की जिंदगी में एक बार फिर वो जन्म ले और उनकी जिंदगी बदल जाए। वो इंसान की सूरत में, आसमानी जलाल में फतेहमंद खुदा मसीह बादशाह हमारी जिंदगियों में पैदा हो सके। मसीह के किरदार को अमली तौर पर दिखाने के लिए हमें मसीह की मानिंद बनने की जरूरत है। पौलुस कहता है मेरी मानिंद बनो जैसे मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। और याद रखें, मसीह की मानिंद बनना आसान बात नहीं है। मसीह की मानिंद बनने के लिए अपनी खुदी का इनकार करना है, लेकिन अफसोस कि हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करना चाहते। हम अपने आप को, आजकल मैंने देखा है बहुत से लोग दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, और लोग भी गुमराह होते चले जा रहे हैं। इसलिए लोग गुमराह कर रहे हैं कि यह आखिर दौर है, अपने आप को वो पेश कर रहे हैं। मसीह कहां गया? लोगों ने ड्रामे बना रखे हैं, लोगों को तरह तरह की ताइशात के अंदर उलझा रखा है, तरह तरह की गलत तालीमात के अंदर उलझा रखा है। कहीं नाच रंग किया जा रहा है और कहीं पर अजीब तरह के ड्रामेबाजियां की जा रही हैं। स्टेज पर अपने आप को किया जा रहा है, झूठी गवाहियां दी जा रही हैं, झूठी नबूवतें की जा रही हैं। कलाम में क्या लिखा है कि कलाम कहता है कि नबूवत जो है, रूल कुछ नबूवत जो है उसमें इंसानी मर्जी शामिल नहीं होती, लेकिन हम अपनी इंसानी मर्जी को शामिल करके लोगों को खुश करने के लिए वो नबूवतें और वो कलाम सुना रहे हैं जो लोग समझते हैं, और ये झूठी नबूवतें हैं। हम लोगों को खुश करना चाहते हैं और लोग भी इसलिए खुश होना चाहते हैं, हकीकी तालीम की वो बर्दाश्त नहीं करते। कलाम में लिखा है कि लोग अपने कानों की खुजली के बायस
ये कानों की खुजली है, तरह तरह की चकनी चपड़ी बातें, मसालादार बातें, इस तरह की इधर की उधर, उधर की इधर, गलत तालीमात, हंसने हंसाने खेल खिलाने की बातें लोग सुनना पसंद करते हैं, हकीकी तालीम की बर्दाश्त नहीं करते। ये अखीर दौर है। ये क्रिसमस का मतलब नहीं है। क्रिसमस का मतलब है कि मसीह मेरा मंसूर निजात दहिंदा मेरे अंदर जन्म ले। कब वो जन्म लेगा आपके अंदर? 2000 साल गुजर चुके, साल साल से नस्ल दर नस्ल, बाप दादा से आबाओ अजदाद से हम क्रिसमस मनाते आए हैं। आज क्रिसमस का मतलब समझे कि मसीह को अपने अंदर जन्म देना है, मसीह की मानंद बनने की बात करें। और मसीह की मानंद बनना जो है वो आसान बात नहीं है। इब्लीस ने भी मसीह की मानंद बनने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? वो पस्ती और जिल्लत की अथाह गहराइयों में गिराया गया। वाई? इसलिए कि वो खुद को ग्लोरीफाई करना चाहता था। हम खुद को ग्लोरीफाई करते हैं। मसीह कहां है? मसीह को लोगों को दिखाएं। कम ऑन, समझें इस बात को। मसीह को लोगों को दिखाने की जरूरत है। मसीह की आमद जो है वो अब्राहम के लिए ताजगी को लेकर आया। क्या लिखा है? हमने क्या पढ़ा पैदाइश में? मलकीसिदक क्या लेकर आया? वो उसके लिए रोटी और मैं लेकर आया। क्यों लेकर आया? इसलिए कि उसे पता था वो जंग से उसने शब खून मारा है, उसने बहुत बड़ा मार्का किया है, वो थका हुआ है, उसको ताजगी की जरूरत है। आज हम हर रोज गुनाह से लड़ते हैं, तरह तरह की बिद्दतों से लड़ते हैं, तरह तरह के लोगों का सामना करते हैं। इंसान ना सिर्फ जिस्मानी, इखलाकी और ज़हनी बल्कि रूहानी तौर पर भी थका हुआ है, पसमानदा है, उसको ताजगी की जरूरत है। जैसे मलकीसिदक अब्राहम के लिए रोटी और मैं लेकर आया, यीशु मसीह अपना खून, अपना बदन आपके लिए लेकर आया है ताकि हमें वो ताजगी की तरफ लेकर जाए। यीशु मसीह जब आता है तो हकीकी ताजगी हमारी जिंदगी में आती है, हमें कुव्वत मिलती है। हम जो आजमाइश में घिरे और इखलाकी, रूहानी, जिस्मानी तौर पर थके हुए होते हैं, हमारी कुमक यीशु मसीह करने आता है। आज इस क्रिसमस पर वो उन इंसानों की, उन लोगों की जो हकीकी सच्चाई की तलाश में है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि हकीकी सच्चाई वो है और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, इन सारी बातों से आजाद करेगी। और सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह है। उसका यह दावा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, वो सच्चाई है। उसकी हजूरी में ताजगी है, वो हमारी कुमक करने आता है। मलकीसिदक सालम रोटी और मैं लेकर आया। यीशु मसीह हमारे लिए सलीबी कुर्बानी के वसीला से रोटी और मैं लेकर आया, अपना बदन और अपना लहू हमारे लिए लेकर आया। ईमान की रूह से हमें उस रोटी को, उसके बदन को, उस कुव्वत को, उस ताजगी को लेने की जरूरत है, क्योंकि वो हमें ताजा दम करना चाहता है। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। वो मर गया ताकि हम जिंदगी पाए। He died for us so that we can receive eternal, not life, but eternal life, हमेशा की जिंदगी। वो इसीलिए जाहिर हुआ। यह है क्रिसमस का मतलब। क्रिसमस का मतलब पहले यूहन्ना के 3 बाब और उसके 8वें आयत में क्या लिखा है? कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदा का बेटा इसलिए हमारी जिंदगी में जाहिर होता है कि हमारे अंदर इब्लीस के काम मिटाए जाए। आज हकीकी मलकीसिदक सालम, सलामती का बादशाह हमारी जिंदगियों में पैदा होना चाहिए। अगर अब भी साल गुजर गया है, पता नहीं साल भर में हमने कितने गुनाह, कितनी कोताहियां, कितनी बुरे काम किए, क्या क्या कुछ किया, लेकिन अब साल गुजर रहा है। एक नया साल हमारी जिंदगी में नई तकवीयत, नई कुव्वत, नई ताजगी, नया जोश, नया जज्बा, नया वलवला, नई कुव्वत, नया ईमान, नई जिंदगी लेकर आने वाला है। उस साल में हमारी क्या हिकमत अमली है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। अजीजों, पिछले साल को भूल जाएं, मसीह को अपने अंदर जिंदा करें, तो फिर हकीकी क्रिसमस, हकीकी मसीह आपके अंदर पैदा होगा। क्राइस्ट माई एनॉइंटेड सेवियर, मसीह मेरा ममसूर निजात दहिंदा। खुदा आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा और इसके बाद मैं
دعا میں تھا کل، تو خدا نے راستے میں مجھ پر یہ بھید کھولا کہ اب چونکہ وہ میں پہلے ایک تمثیلی سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اب خدا نے میرے اوپر یہ بھید کھولا ہے کہ میں ایک اور سلسلہ شروع کروں، اور وہ ہے عیدوں کے تعلق سے سلسلہ، کیونکہ بہت سی بدعتیں اور بہت سی غلط تعلیمات، اسپیشلی یہ جو مسیحینک جیوز ٹائپ لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کو بہت گڑبڑا دیا ہے۔ مسیح کی تعلیم انجیل کی خوشخبری سادہ پیغام ہے، زندگی کا پیغام ہے، ہمیں الجھاؤ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر آپ عبرانیوں ہی کا خط پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پرانی جو عکس کی چیزیں تھیں وہ مسیح میں پوری ہو چکی ہیں۔ تو میں نیکسٹ جو ہے وہ عیدوں کے تعلق سے ایک سلسلہ شروع کروں گا، اس میں چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں گھنٹوں بیٹھ کر بات کر سکوں، تو میں 20-25 منٹ میں شارٹ ان کے تھوڑے سے سرمن ٹائپ ایجوکیشن، سرمن ٹائپ ٹیچنگ جو ہے وہ تیار کر کے آپ کو ان عیدوں کے تعلق سے سلسلے میں شروع کروں گا۔ اس لیے میرے لیے خدا کے حضور میں دعا کیجئے گا کہ خدا مجھے قوت دے اور حقیقی سچائی کلام میں سے، نہ کہ ادھر ادھر سے یا اپنے آپ کو اوسٹنٹیشیس لائف میں بس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور لوگ بھی گمراہ کرنے والوں کے زیادہ پیچھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے کہ اخیر وقت ہے تو میں لوگوں کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کر سکوں۔ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ خدا مجھے قوت دے۔ ابھی اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ ہمارے نہایت مہربان بزرگ جلالی وفادار لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے جےکار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں۔ پاک خدا، اقرار کرتا ہوں کہ اپنی ہی ذات میں خاک و راکھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے، اور تیرے ہی فضل کا سہارا لے کر تیری پاک حضوری میں خدا ان زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا، اور اس کلام کے وسیلہ سے ان سننے والوں کو اور جو بعد میں سنیں گے ان تمام جانوں کے لیے میں سلامتی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں۔ ہمارے ذہنوں کو کھول کے ہم حقیقی سلامتی کے شہزادے کو اپنی زندگی میں قبول کر سکیں تاکہ ہماری زندگی بدل سکے۔ اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسی کوتاہیاں، کمزوریاں اور گناہ ہیں جن کو ہم چھپاتے ہیں، تو ہمیں فضل دے کہ ہم تیری حضوری میں ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کریں تاکہ تیری رحمت ہم پر ہو اور ہم حقیقی کرسمس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ ساری التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔